امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ ایران پر حملے کے لیے سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں۔ تہران میں غیر فوجی اہداف پر حملہ بھی منصوبے میں شامل ہے۔ امریکی اخبار کی رپورٹ میں کہا گیا کہ صدر ٹرمپ کو ایران پر فوجی حملوں کے آپشنز پر بریفنگ دی گئی۔ ٹرمپ انتظامیہ ایران کے خلاف کارروائی پر غور کر رہی ہے، لیکن صدر ٹرمپ نے ایران پر حملوں کا ابھی حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے حال ہی میں ایرانی قیادت کو خبردار کیا تھا کہ اگر مظاہرین کو قتل کیا گیا تو وہ ان پر سخت حملہ کر دیں گے۔ صدر ٹرمپ کا دعویٰ تھا کہ ایران ماضی کے مقابلے میں آج کہیں زیادہ آزادی کی جانب دیکھ رہا ہے اور امریکہ اس کی مدد کے لیے تیار ہے۔ برطانوی اخبار نے دعویٰ کیا کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فوجی سربراہ کو حکم دیا ہے کہ وہ گرین لینڈ پر حملے کا منصوبہ تیار کریں، تاہم سینئر امریکی فوجی گرین لینڈ پر حملے کے منصوبے کے مخالف ہیں۔ برطانوی اخبار کی رپورٹ میں کہا گیا کہ صدارتی مشیر سمیت کئی اہلکار گرین لینڈ پر حملہ چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ امریکی معیشت کی صورتحال سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے ووٹرز کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایران میں افراتفری بے امنی پھیلانا چاہتے ہیں۔ امریکہ اسرائیل اپنے مذموم مقاصد کے لیے ایران میں فسادات کرا رہے ہیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ ایرانی عوام فسادیوں اور دہشت گردوں سے خود کو دور رکھیں، ایرانی عوام فسادیوں کو انتشار پھیلانے کی اجازت نہ دیں۔ صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ کسی غیر ملکی کو قوم میں انتشار کے بیج بونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ امریکی صدر کو وینزویلا، غزہ اور دیگر مقامات پر کیے گئے اقدامات پر شرم آنی چاہیے۔ کوئی شہری بے امنی نہ پھیلائے اور کوئی انسان دوسرے انسان کو قتل نہ کرے۔ صدر پزشکیان کی تمام طبقہ ہائے فکر کو فسادات کے خلاف کھڑے ہونے کی دعوت دی اور ایرانی عوام سے فسادیوں کے راستے سے خود کو الگ رکھنے پر زور دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ مائک پومپیو کا شرمناک بیان امریکی اسرائیلی عزائم ظاہر کرتا ہے۔ حقیقت میں اسرائیل اور امریکہ خوابوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں۔ وہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ جلاؤ گھراؤ کرنے والے آگ سے محفوظ رہیں گے۔ اسپیکر محمد رضا نے پارلیمنٹ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ غلط اندازوں سے باز رہے۔ خبر ایجنسی اسرائیلی عہدیداروں کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ ممکنہ ایرانی مداخلت کے پیش نظر اسرائیل ہائی الرٹ پر ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو فون کیا ہے اور دونوں رہنماؤں نے ایران میں مظاہروں، غزہ اور شام کی صورتحال پر گفتگو کی۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ آزادی کی جدوجہد میں ایرانی عوام کی حمایت کرتے ہیں۔ ایرانی عوام کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات ہیں۔ ایرانی عوام آزادی کے مستحق ہیں۔ ہماری ان سے کوئی دشمنی نہیں۔ ایرانی حکومت صرف ہمارا نہیں بلکہ علاقائی اور بین الاقوامی مسئلہ ہے۔ ایران میں احتجاجی مظاہروں کا آج 14واں روز ہے۔ ایرانی ذرائع کا کہنا ہے کہ ایران میں پرتشدد مظاہروں کے 200 سے زائد منتظمین کو گرفتار کیا گیا ہے۔ گرفتار مظاہرین سے بڑی تعداد میں اسلحہ اور بارود برآمد ہوا ہے۔ ناروے سے تعلق رکھنے والی انسانی حقوق تنظیم کا کہنا ہے کہ ایران میں 2 ہفتوں سے جاری مظاہروں میں 192 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ انٹرنیٹ بندش کی وجہ سے ہلاکتوں کی درست تعداد معلوم نہیں ہو پا رہی۔ الجزیرہ ٹی وی کے مطابق ایران میں مظاہرین سے جھڑپوں میں 109 سیکیورٹی اہلکار جاں بحق ہوئے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان میں تعینات ایران کے سفیر رضا امیری مقدم نے کہا ہے کہ ایران میں کل رات سے مجموعی صورتحال پرامن اور معمول کے مطابق رہی۔ تہران اور دیگر بڑے شہروں میں کسی نمایاں بے امنی یا ہنگامہ آرائی کی اطلاع نہیں ہے۔ سیکیورٹی خدشات، دہشت گردی خطرات، بیرونی مداخلت کے باعث انٹرنیٹ عارضی متاثر ہوا ہے۔ ایرانی عوام نے دشمن کی سازشوں کو سمجھتے ہوئے دہشت گردوں اور شرپسندوں سے فاصلہ رکھا۔ ایرانی قوم ماضی کی طرح موجودہ چیلنجز سے بھی نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ایرانی قوم میں صبر، استقامت اور دانش مندی سے ان چیلنجز سے نمٹنے کی صلاحیت ہے۔ ایران میں مجموعی طور پر اس وقت کیا صورتحال ہے، یہ جانیں گے ایران میں موجود صحافی جان حسین سے۔ جان، شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ کہیے گا اس وقت اوورآل کیا سچویشن ہے، احتجاج کی کیا صورتحال ہے اور معمولات زندگی کس طرح چل رہے ہیں؟ ایران کی اگر صورتحال بتاؤں تو تھرسڈے اور فرائیڈے کو وائلنس میں اضافہ دیکھا گیا۔ بینکس جلائے گئے، گورنمنٹ بلڈنگز جلائی گئیں، بسوں کو جلایا گیا، گاڑیوں کو جلایا گیا، گروسری سٹورز کو جلایا گیا، 2 ہاسپٹلز میں آگ لگائی گئی، فائر بریگیڈ کے ڈپارٹمنٹ کو آگ لگائی گئی، معصوم لوگوں کی جانیں گئیں، پولیس والوں کی بھی جانیں گئیں اور رائٹرز بھی کافی سارے مارے گئے۔ فارن نیشنلز کو بھی اریسٹ کیا گیا اور ایرانیوں کو بھی کافی ساروں کو اریسٹ کیا گیا۔ گورنمنٹ نے پیغام دے دیا تھا فرائیڈے کو ہی کہ جو وائلنٹ رائٹرز ہیں
उनके साथ रद्द-ए-अमल लिया जाएगा और प्रोटेस्टर्स जो हैं उनको बहरहाल कुछ नहीं किया जा रहा। स्कैटर्ड प्रोटेस्ट छोटे-छोटे इस वक्त आपको शायद कहीं नज़र आए, लेकिन मुझे अभी तक कोई प्रोटेस्ट कल और आज तेहरान के अंदर नज़र नहीं आए। और अभी इस वक्त आपको जो सेंटिमेंट नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है कि लोग इस वक्त जो हैं वो डिस्करेज हो रहे हैं, प्रोटेस्ट में नहीं जा रहे इस खदशे में कि कहीं वहाँ पे वायलेंस शुरू ना हो जाए। साथ ही साथ इंटरनेट की रिस्ट्रिक्शन अभी भी ईरान के अंदर है और गवर्नमेंट का कहना ये है कि जो मोसाद का कम्युनिकेशन नेटवर्क है उसको डिसमेंटल किया जाए। ऑल्दो लोकल ईरानियन इंटरनेट जो है वो काम कर रहा है, एप्लीकेशंस डिफरेंट काम कर रही हैं। उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ शहरों में, इस्फहान में और तेहरान में भी पुलिस वालों के और मासूम लोगों के नमाज जनाजा जो है वो पढ़ाए गए हैं। शिद्दत में कमी आ रही है और क्योंकि क्लैम्प डाउन हो रहा है ऑब्वियसली, और लेकिन सिचुएशन अभी भी डेवलपिंग है और वायलेंट जो राइटर्स हैं उनके साथ अभी इस वक्त उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि एंटी राइटर जो रैली हैं, काउंटर प्रोटेस्ट जो है वो काफ़ी शिद्दत पकड़ रहे हैं और मुख्तलिफ मकामात पे इस वक्त जो है वो लोग निकल रहे हैं जो ईरानियन सिस्टम है उसकी सपोर्ट में। कल 2 बजे इनकलाब स्क्वायर पे तेहरान में एक बहुत बड़ी रैली होने वाली है, तो वहाँ पे भी जाने की लोग तैयारी कर रहे हैं। बहरहाल आयतुल्लाह खामनाई ने जो है वो बयान में कहा है कि आप वहदत रखें अवाम में और प्रोटेस्टर्स को जो है वो जिनके जेन्युइन ग्रीवियंसेस हैं उनको उनके साथ आप क्लैश ना करें किसी तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जॉन हुसैन, आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। ईरान में पाकिस्तान के सफ़ीर मुदस्सिर टीपू ने कहा है कि ईरान में वाईफाई डाउन है, ईरान में टेलीफोन का निज़ाम भी मुतासर है। शहरी हमसे सफारतखाने की लैंडलाइंस पर रब्ता कर सकते हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए मुदस्सिर टीपू का कहना था कि पाकिस्तान वापस जाने वाले अफराद बॉर्डर बंद होने से 4 घंटे पहले पहुँचें। पाकिस्तान वापस जाने वाले अफराद पासपोर्ट पर स्टैंप ज़रूर लगवाएं। ईरानी बॉर्डर अथॉरिटी से भी सफारतखाना मुकम्मल राब्ते में है। ईरान में पाकिस्तानी शहरी वज़ारत ख़ारजा की एडवाइजरी पर अमल करें। हमने एम्बेसी के अंदर एक यूनिट बना दिया हुआ है जिसके अंदर 3 ऑफिसर्स हैं और एम्बेसी की लैंडलाइंस अवेलेबल हैं। हमारी कॉन्स्टिट्यूट की लैंडलाइन चल रही है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उन लैंडलाइन के थ्रू हमसे रब्ता कर सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि ईरान में अभी वाईफाई कम्प्लीटली डाउन है। कम्युनिकेशन के ब्रेकडाउन की वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है। आज हॉर्मुज़गान यूनिवर्सिटी के तकरीबन 72 स्टूडेंट्स चले गए हैं पाकिस्तान, वो बॉर्डर क्रॉस कर गए। हमने उनको पूरा फैसिलिटेट किया वहाँ पे बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए। इस तरह जंजान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी चले गए हैं, वो कल पहुँचेंगे, तो हम उनके लिए भी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। और जो आपकी एसेंशियल चीज़ें हैं वो अपने पास रखें और जो फॉरेन मिनिस्ट्री की एडवाइजरी इशू हुई है आप काइंडली उसके ऊपर अमल करें। कराची में तहरीक इंसाफ का जलसा अब तक शुरू नहीं हो सका। जलसे से पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने किमाड़ी और बल्दिया समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ राहिल सलमान से। राहिल, कब तक जलसा शुरू होने का इम्कान है? जी मोशीर, अब से कुछ देर पहले वज़ीर आला सुहेल आफरीदी यहाँ नुमाइश चौरंगी पर पहुंचे। यहाँ पर कारकुनान उनके जमा थे और इस चौरंगी को भी चारों तरफ से बंद कर दिए गए थे। यहाँ पर एक ट्रक लाया गया था अब से कुछ देर पहले, जिससे साउंड सिस्टम लगा हुआ है और पीटीआई के रहनुमा हलीम आदिल शेख और सुहेल आफरीदी और दीगर लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर जमा है और जो बाग जिना जो इसका असल वेन्यू था वहाँ से लोग यहीं पर ही आके जमा हो रहे हैं, नुमाइश चौरंगी पर ही। और जो बाकायदे तौर पे जलसा बाग जिना में होना था वो अभी तक शुरू नहीं हो सका है। सुहेल आफरीदी इस वक्त नुमाइश चौरंगी पर अपने दीगर रहनुमाओं के साथ मौजूद हैं। पीटीआई की जानिब से दावे किए जा रहे थे कि उनको यहाँ तक पहुँचने में कुछ मुश्किलात का सामना था, जिसकी वजह से वो यहाँ पर पहुँचने में ताकत का शिकार हुए। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी पहुँच चुके हैं। यहाँ पे तमाम रहनुमा भी ट्रक पर मौजूद है और इम्कान ये जान किया जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद यहाँ पर कोई खिताब शुरू होगा, लेकिन अभी तक यहाँ पे पिक्चर क्लियर नहीं है। किसी किस्म की कोई अनाउंसमेंट नहीं की जा रही कि यहाँ से कारकुनों को बाग जिना जाने का कहा जाए या यहीं पर ही खिताब होगा। अभी इस वक्त जो है वो पोजीशन क्लियर नहीं है। सिर्फ यहाँ पर अनाउंसमेंट की गई है कि कारकुनान यहाँ पे जमा रहे और सुहेल आफरीदी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हमने भी देखा कि यहाँ पर हलीम आदिल शेख और दीगर रहनुमा सुहेल आफरीदी के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं और इस वक्त ट्रक पर मौजूद हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका राहिल सलमान। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कराची में वज़ार क़ायद के करीब निजी न्यूज़ चैनल की गाड़ी को नुकसान पहुंचाए जाने के वाक़े का नोटिस लेते हुए एसएसपी ईस्ट से तफसीलात तलब कर ली हैं। ज़ियाउल हसन लंजार का कहना है कि किसी को अमन व अमान ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती।
वज़ीर दाखिला सिंध ने पुलिस को हिदायत दी कि शरपसंदों को गिरफ्तार किया जाए। तर्जुमान MQM पाकिस्तान का कहना है कि मीडिया वर्कर्स पर हमला कराची के आवाम का तर्ज अमल नहीं, शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने भी सहाफ़ियों पर PTI कारकुनों के तशद्दुद की मज़म्मत की है। एलामिया में कहा गया कि PTI क़यादत मीडिया पर्सन पर तशद्दुद का फौरी नोटिस ले। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूर ने भी बाग़ जना कराची में सहाफ़ियों पर तशद्दुद और मीडिया हाउसेस की गाड़ियों और आलात में तोड़ फोड़ के वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अपने सूबे में काम के बजाय दीगर सूबों के दौरे कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के आवाम का क्या कसूर है? सुहेल आफरीदी सिंध में पहिया जाम के बजाय पेशावर में दहशतगर्दी के खिलाफ काम करें। पुरअमन एहतजाज और PTI दो अलग अलग चीज़ें हैं। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की आवामी खिदमत के मनसूबों से कोई इनकार नहीं कर सकता। बिलाल अज़हर कियानी ने कहा कि नून लीग सियासी और जमहूरी जमात है। स्पीकर कौमी असम्बली की सदारत में बातचीत का अमल गुज़श्ता साल हुआ था। बातचीत के दौरान PTI उठकर चली गई। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के तहत 100 से ज़ायद जोड़ों की कराची में शादी हो रही है। तफसील बता रहे हैं वलीद अहमद। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के तहत तकरीबन 100 जोड़े रिश्ते के बंधन में बंधे जा रहे हैं और यहाँ पर 7 फेरे लिए जा रहे हैं। प्रिया की भी शादी हो रही है। प्रिया से हम बात करते हैं। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मेरी यहाँ शादी है और अच्छी बात है कि जो यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका भी है और उनके लिए बहुत ही लोग अच्छी कम्युनिटी है इनकी कि जो इनकी शादी करवा रहे हैं और उनकी इतनी हेल्प कर रहे हैं हर चीज़ के अंदर, चाहे वो फाइनेंशियल इश्यूज़ हो या कुछ भी हो, ये लोग उनकी बहुत ही अच्छी तरह से मदद कर रहे हैं। शादी से पहले ख़वातीन तो बहुत तैयारियां करती हैं। जी मैंने तो कोई खास तैयारी नहीं की, मेरी दोनों सिस्टर्स ने ही तैयारी की है मेरी, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ और सबसे लाडली हूँ। बस मेरे भगवान जी मुझे इस तरह से खुश रखे और सबको इसी खुशी नसीब करें। खूब अच्छा माहौल है, रोशनियाँ हैं, ढोल बाजे हैं और हर शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट है। इस्लामाबाद के सेक्टर G72 में गैस लीकेज धमाके से मरने वाले 6 अफराद की आखिरी रसूमात के बाद तदफीन कर दी गई। 2 अफराद की आखिरी रसूमात कल अदा की जाएंगी। मजीद बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद के सेक्टर G72 में, जहां आज सुबह इंतहाई नाखुशगवार वाकया पेश आया जब गैस लीकेज के बायस 4 जो घर हैं क्रिश्चियन कॉलोनी में उनको जो है वो नुकसान पहुंचा, मुनहदम हो गए। एक घर जिसमें शादी की जो है वो तकरीबात चल रही थी वो घर भी मुकम्मल तौर पर मुनहदम हुआ और उसके नतीजे में नोबयाता जोड़ा और उसी घर के 4 मजीद अफराद जो है वो मौके पर जा बहाक हुए। उनको अस्पताल ले जाया गया मैयतों को और उसके बाद मगरिब के बाद काफी घंटे गुजर जाने के बाद जो मैयतें हैं वो हवाले की गई बुरसा के और जो रसूमात है वो अदा की गई। 10 से 12 अफराद के जख्मी होने की इतलात भी आई। वो अभी तक अस्पताल में जो है वो इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए मुंतकिल किए गए और वहाँ मौजूद है, लेकिन जिनकी ज्यादा जो तशवीशनाक हालत थी वो जो 2 जख्मी थे उन्होंने दम तोड़ा अस्पताल में जाके, जबकि इब्तदाई तौर पर ही 6 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे थे यहाँ पर और उनकी जो ये अफसोसनाक वाकया है इसमें जो तमाम रसूमात है उनकी अदायगी के बाद तदफीन का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया है।